آپ ادھر آؤ. I'll stand next to you. السلام علیکم. چلو کوئی بات نہیں بھائی, بسم اللہ کرو. ابھی بھی 6:30 ہے نا, شروع کریں. آپ لوگ بتا دیں پھر شروع. میں دور کر رہی ہوں. اب ٹھیک ہے. اچھا لائیو کون کون کٹ کر رہا ہے؟ اوکے گریٹ. چلے رہو سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیچرز ہیں, ان کے ہسبینڈز مختلف محکموں میں ہیں اور یہ مختلف صوبوں سے ہیں. کوئی گلگت بلتستان سے آیا, کوئی سندھ سے آیا, کوئی خیبر پختونخوا سے, کوئی بلوچستان سے, کوئی پنجاب. اور ان کی سروسز جو تھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہائر کی تھی. اور اب اچانک بغیر وجہ بتائے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنے جو پہلے آپ کے محکمے تھے جہاں سے آپ ٹرانسفر ہو کر آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں. اب وہاں یہ سچویشن ہے کہ وہ نوکریاں واٹس ایپ میسج کیا ہے کہ فوری طور پر آپ واپس چلے جائیں. وہ جو نوکریاں یہ چھوڑ کے آئے تھے وہ ویکینسیاں تو فل ہو گئی, یہ یہاں ایبزارب ہو گئی ہیں کئی سالوں سے. 2013 میں یہ مسئلہ میرے سامنے آیا جب میں پرائم منسٹر تھا. یہ سڑکوں پر نہیں آئے تھے, انہوں نے ریپرزنٹیشن کی اور میں نے ان کے معاملات دیکھتے ہوئے فوری طور پر یہ سمری منظور کی جو میرے ہاتھ میں ہے, اور میں نے ان کو ون ٹائم ایبزاربشن کا آرڈر دے دیا اور یہ لوگ چل رہے تھے. اچانک ان کے اوپر یہ بجلی گرا دی گئی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں یہ سڑک پر کس قسم پرسی کے حال میں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور حکومت کے کانوں پہ جون تک نہیں رہی. یہ ہیں وہ عوامی مسائل جو ہم اسمبلی میں اٹھانا چاہتے ہیں, جس پر آج بھی میں نے اسمبلی میں بات کی کہ پارلیمان میں, قومی اسمبلی میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرے, ان کی مشکلات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے اور ان کا حل تلاش کرے, ان کی مشکلات کو کم کرنے کی سعی کرے. لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے. حکومت کرنی ان کو آتی نہیں ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سارے گونگے اور بہرے بنے پھرتے ہیں. اب وہ دیکھیں تھوڑا تو اور آگے جائیں تو پیمز ہاسپٹل جو واحد بڑا اسپتال ہے سارے علاقے کا, پشاور کے پی کے سے لے کے ہمارے لوگ پنجاب تک لوگ یہاں آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور وہ جائکا اس کو فنڈ کرتا تھا, جاپنیز کمپنی, ایک ایسوسی ایشن, ایک آرگنائزیشن. اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی آپ نے ابھی ایک قسم کا پرائیویٹائز کر دینا ہے, جیسے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو کیا, اور اس کا کیا حال ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب آدمی کے لیے ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, ریاست مدینہ کے الفاظ استعمال کر کے, اور یہ کرنا. اب مجھے بتائیں کہ کون غریب آدمی ہے جو اپنے ٹیسٹوں کے پیسے دے گا لیبارٹری میں, اس کے بعد فیس دے گا, پھر دوائیاں خریدے گا, کون کرے گا؟ کیا یہ ہاسپٹل بھی امیروں کے لیے ہوگا؟ کیا اس کے ہاسپٹل میں بھی صرف امیر لیٹا کریں گے؟ پھر غریب کہاں جائے گا؟ میں عمران صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر سے, کہ بھائی یہ آپ کو یہ کون سمجھا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی صاحب ہیں, کوئی ان کے عزیز ہیں, وہ یہ جو ہے یہ نت نئے قسم کے جو ہے وہ تجربات کر رہے ہیں, اس سے نقصان ہو جائے گا. ہمارا ہیلتھ سیکٹر آپ نے تباہ کر دیا ہے. سندھ میں بہترین ہیلتھ سیکٹر کام کر رہا ہے اس وقت. گردے اگر بدری ہوتے ہیں تو وہ سندھ میں ہوتے ہیں مفت. اگر لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو وہ سندھ میں چھوٹی سی جگہ ہے, گمبٹ وہاں ہوتا ہے. اسی طرح چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بیسٹ کراچی میں. اسی طرح آپ کا ایس آئی یو ٹی ہے, این آئی سی ڈی ہے, تو سی بی ڈی. میں آپ کو یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل جو سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے اس پر بھی ہم قبضہ کر لیں. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس سے اس ملک کے ادارے تباہ ہو جائیں گے, ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو جائے گا. ایجوکیشن سیکٹر میں یہ ہوا ہے کہ ابھی تک پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے اپروو ہی نہیں کی کہ پرائمری سے لے کے مڈل جو ہے وہ تدریسی کتب کون سی ہوگی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں,
बच्चों को इस वक्त उनके पास किताबें नहीं हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो तदरीसी उसको अप्रूवल भेजेगी तो वो फिर प्रिंट होंगी, फिर पब्लिशर जो है उसको लेकर आएगा मार्केट में, उस वक्त तक बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये क्या हुकूमत है, इसने हर सेक्टर तबाह कर दिया है। बिजली की कीमतें जो हैं वो बगैर नोटिस के जिस वक्त चाहते हैं वो बढ़ा देते हैं। आज हमारी लड़ाई हुई है, जवाब हमें वजीर खारजा देता है, और वो क्या हम सवाल कर रहे हैं बिजली का कि बिजली महंगी हो गई है। हमने एडजर्नमेंट मोशन डाला हुआ है, आप हमारा बिजनेस नहीं लेकर आते और उलझ पड़ते हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं। हम जो बात करना चाहते हैं भाई, आप कानून साजी करना चाहते हैं तो आप हमारी इनपुट लें, हमारी बात सुने, उसके बाद आप कानून साजी करें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कि इस हुकूमत ने हर सेक्टर को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। मुल्क में जो हकीकत है कि पूरी एनवायरनमेंट जो फ़िज़ा है वो ख़राब हो चुकी है, कोई आदमी मुतमईन नहीं है। महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी, कुव्वत खरीद ख़त्म होकर रह गई है। अस्पतालों में जाएं आप तो क्या हो रहा है, दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई, कौन रोकेगा इसको, कौन इस पर कदगन लगाएगा, कौन इनसे सवाल पूछेगा। पार्लियामान उसके लिए जगह थी, और पार्लियामान की हालत इन्होंने ये कर दी है कि खुद भी गालियां देते हैं, बात करने नहीं देते किसी को। हुकूमत का काम होता है कि पार्लियामान के माहौल को ठंडा रखना, ये आते ही उसको आग लगा देते हैं। तो ये हालात हैं जो हम कौम के सामने रखना चाहते हैं। जी, एक ही जवाब है उनके पास। पिछले दिनों में बिजली का ब्रेक डाउन हो गया, आपको पता है, पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया 10 तारीख को। तो इनसे किसी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ये पिछली हुकूमत का। आज हमने कहा कि बिजली की कीमतों, तो बिजली के जो एनर्जी के मिनिस्टर कहते हैं कि मैं फिर बात करूंगा, फिर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने कहा भाई गुस्सा किस बात का, हमारे ज़माने में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो $145 फी बैरल थी, और यूनिट कितने का था, 4 रुपए का। आज बैरल कितने की है और यूनिट हो गया 28-29 रुपए का। आप ईमानदारी से बताएं, आप खड़े हुए हैं, क्या आप आसानी से अपने बिजली का बिल भर सकते हैं? ये कौन ये सवाल जब ये कौन अपोजिशन सवाल करती है, उस पर कहते हैं ये किया धरा इनका। भाई हम तो 4 रुपए में दे रहे थे, फिर आप भी दें 4 रुपए का। अब तो ऑयल की कीमत बहुत सस्ती है इंटरनेशनल मार्केट में, और एक वक्त ये आया था कि वो मुफ्त तेल दे रहे थे। ये इतने निकम्मे हैं कि मुफ्त भी नहीं हासिल कर सके। आपको याद है ना, पिछले जब गिर गई थी कीमतें तो वो कहते थे कि हमारे पास से आप उठाएं, बल्कि वो कुछ पैसे भी दे रहे थे स्टोरेज के लिए, इन्होंने दे दिए। तो हर तरफ मैं समझता हूँ नाअहली और निकम्मेपन का दौरा है, जिससे मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। देखिए हम तो आ चुके हैं, PDM सारी सियासी जमातें जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं समझता हूँ आवाम की, वो तो आ चुके हैं। वो तो सियासत में मैं समझता हूँ कि ये तो जुम्मा 8 दिन है, और वो भी मांगे तांगे के लोग हैं इनके पास। इनकी कौन सी जमात के लोग हैं? कोई हमारे भागे हुए लोग हैं, कोई मुस्लिम लीग से भागे हुए लोग हैं, कोई तीसरी जमात से भागे हुए लोग हैं, जिनका सियासी एड्रेस नहीं है। आप उनको अगर ख़त डालते हैं कि फलां क्या PTI, तो हो सकता है कि 3 माह के बाद वो ख़त उन तक ना पहुँच सके, वो किसी और जमात में। इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये लोग मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकते, जिनकी कोई कमिटमेंट नहीं। तो इसलिए मेरी इस्तदा है कि हालात आपके सामने हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जब हम जदोजहद करते हैं तो ये कहते हैं हमसे NRO मांग रहे हैं। भाई रखो अपना NRO अपने पास, कोई नहीं तुमसे मांगता NRO। लेकिन ये तो बताओ कि चीनी स्कैंडल का क्या हुआ, ये तो बताओ दवाइयों के स्कैंडल का क्या हुआ, ये तो बताओ गंदम के स्कैंडल का क्या हुआ। आप उस तरफ आते ही नहीं। तो ये पार्लियामान के अंदर पूछे जाने हैं ना सवालात, अब उससे वो कतराते हैं। हम आते हैं, हम कहते हैं बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई है, वजह क्या थी? वो कहते हैं कि नहीं आज एजेंडे पर नहीं आ सकता, शोर शराबा करते हैं। आज भी एडजर्नमेंट मोशन बड़ी मुश्किल से लगाया गया, और उसके ऊपर फिर बहस नहीं हुई, दूसरी तरफ चल पड़े हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जमहूरी लोग हैं, पार्लियामान की इज्जत और एहतराम पर यकीन करने वाले लोग हैं। हम अपना जमहूरी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
साथ एनआरओ के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों करे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मैदान की सियासत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सियासी मैदान में मुखालफिन का मुकाबला किया है। हमने तो फांसियों के फंदे भी चढ़े हैं हम लोग, हमने गोलियां और शहादतें भी ली हैं। हम बैक डोर चैनल वाले नहीं हैं बाबा, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में रहते हैं, अवाम की बात करते हैं और अवामी ताकत के बल बोते पर हम सियासत करते हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग नोवेयर, उसकी कोई डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। नेवर केम अक्रॉस सच अ गवर्नमेंट जिसको खुद पता नहीं है, बताओ तो समझ नहीं सकते। पार्लियामान ही वो जगह है ना जहां हम इनको अपना मशवरा दे सकते हैं। और इनको एक ही रट थी कि भाई मीडिया पर आकर अपने अपोनेंट्स के खिलाफ जो है वो आप एक महाजराई करें, उनको चोर और डाकू कहें और अपना गुजारा कर लें। ना इन्होंने कोई डिलीवर किया, ना कोई तरक्याती काम किए, ना कोई इन्होंने प्रोजेक्ट छेड़ा, ना इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया, ना कोई हेल्थ सेक्टर में कुछ किया। किस सेक्टर में इन्होंने काम किया? ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो 1 करोड़ नौकरी ऐसी आएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे। मैं पूछ सकता हूँ कि सर्कुलर डेट कहाँ पहुँच गया है? खरबों में, ट्रिलियंस। अब बताएं, ये है आपकी एफिशिएंसी? ये वज़ीर आज़म को मैं समझता हूँ जो भी मशवरे दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं। जो भी उनका मशीर है वो या तो कैपेबल नहीं है, या उनको समझ बूझ नहीं है, या वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? वो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है। हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। सिर्फ नाराबाजी से, मीडिया में बयान देने से, मुखालफिन को चोर कहने से मसला हल नहीं होगा। डिलीवर करना होता है हुकूमत को। इनके पास कहाँ से टाइम आ जाता है गालियाँ देने के लिए? और आज मैं समझता हूँ जितनी बेदिली है मुल्क में, जितनी मैं समझता हूँ कि गैर यकीनी की कैफियत है, जिस तरह लोग परेशान हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। बहुत मेहरबानी जी। मैं इसमें आपको, आप पहले ये समझें कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। जब आप यूं समझ लें कि एक दुकान है आपकी, उसमें आप कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, और अगर आप सामान जो है वो बिक रहा है और आप नया सामान डाल रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल चल रही है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी इंपोर्ट आपको करनी पड़ती है, आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपकी बिजनेस चल रही है, आपकी दुकानदारियां चल रही हैं। अगर आप इंपोर्ट बंद कर दें, आप एक्टिविटी बंद कर दें, तो फिर आपको कोई उधार नहीं लेना पड़ेगा ना। उधार तो उस वक्त लेना पड़ेगा जब आपको प्रोजेक्ट करेंगे, जब आपको सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, गैस देंगे, बिजलियां देंगे, तो फिर आपको उसके लिए शायद कर्जे लेने पड़े, फिर आपको सामान मंगाना पड़े, उसके बदले में डॉलर देने पड़े। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गई थी तो $2.5 बिलियन था। फिर कहाँ, और हमारी एक्टिविटी कितनी फास्ट थी। आप देखें कितने गाँव को हमने गैस दी, बिजलियाँ दी, सड़कें बनाई, पुल बनाए। ये तो हमने आम काम किया। उसके अलावा हमने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने विश्वास शुरू किया, लोगों को जो था वो उनका जो है वो मालिक बनाया। इन्होंने क्या किया? बगैर आप कुछ नहीं करें, एक्टिविटीज़ जो है वो ज़ीरो है। तो इसलिए ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका कम है तो फिर महंगाई क्यों बढ़ गई है, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है, दवाइयों की कीमत क्यों बढ़ गई है, खाद की कीमत क्यों बढ़ रही है? काश्तकार सरापा एहतजाज है, उसको बेचारे को, काश्तकार की क्या हालत आपने करके रख दी है। हमारे ज़माने में तो काश्तकार ने नए ट्रैक्टर भी खरीदे थे, फ्रिज भी आए थे, बड़े मोर देन 700 बिलियन हमने उस सेक्टर में इंजेक्ट हो गया था, लोगों में खुशहाली थी। आज उसने ट्रैक्टर बेच दिए, आज तो वो परेशान है, आज वो कहाँ जाए? तो हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक है, और ये बड़ी ख़तरनाक इंडिकेटर है
सबसे खतरनाक इंडिकेटर इस मुल्क के लिए है। हुकूमत को सूझबूझ कुछ नहीं है, जो कोई बताता है वो आके टेलीविजन पर बता देते हैं। 10 गालियां अपोजिशन को निकाल देते हैं, 15 गालियां पिछली हुकूमत को निकाल देते हैं और ये कहते हैं सब अच्छा हो जाएगा। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।